Okay, so good morning, students. And in this video, we shall continue our chapter number 4, that is climate. Okay, and with the next topics. Now, please take out chapter number 4, climate, in your textbooks, and we shall continue our next topics. Now, but in the previous videos, we had discussed that India is having monsoon climate. Okay, we have discussed what is monsoon. Monsoon is, we have discussed that monsoon is an Arabic word. Monsoon is taken from the Arabic word mausim, which means seasons. Okay, so now in this video, we shall further discuss these topics. Now, but India has monsoon type of climate. Because why we are saying monsoon type of climate? Because we have studied in the previous video that the monsoon winds that are known as southwest monsoon winds, that brings the monsoons to India, and that puts a major effect on the climatic conditions of India. Also, and when they return, then they are known as northeast trade winds. So that's why we are also saying that India has monsoon type of climate. But we must understand one thing more, that though there is an overall unity in the general pattern, there is still a variation. There is still a variation in the climatic conditions of the country. Now, why we are saying so? देखो, इंडिया में अगर हम ओवरऑल देखिए ना, तो इंडिया हैज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. इफ यू सी ओवरऑल इंडिया, वी कैन से दैट इंडिया हैज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. But when we see deeply, when we see deeply about the climatic conditions of India, we will see variations. We will definitely see variations in the climatic conditions of the country. Why we say so? देखो, you all know that India has the places like Thar Desert, ठीक है, which receives very less rainfall or near about zero rainfall. Also we have the places in Assam and Meghalaya like Mawsynram and Cherrapunji that receives the highest rainfall in the world. So we can easily see that there are variations in the climatic conditions within India. We have the snow covered mountains in the Himalayan region that are covered with snow throughout the year. Also we have the southern India. We have the areas in southern India that even in the months of January and February have 30 to 35 degrees Celsius, that have the hot weather conditions throughout the year, because they are near to equator. So when we deeply see that about the climatic conditions of India, there are variations in the climatic conditions of India. Overall, generally we say there is monsoon type of climate in India, but when we see deeply, there are variations in the climatic conditions. Now what are these variations? Variations का मतलब क्या है? What are variations मतलब कि कुछ चेंजेस हैं सब जगह. वेरिएशन देखो, अब ये जो वेरिएशंस है ना, ये आपको फॉर्म्स एंड टाइप्स में तो मिलेंगे. फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन इसमें तो मिलेगी, साथ अमाउंट में भी मिलेंगे. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज टिक अंडरलाइन दिस पॉइंट in your textbooks also. The variations are not only in the form of not only in the form and types of precipitation, but also in the amount of precipitation also. देखो कैसे फॉर्म एंड टाइप्स का मतलब क्या है. जैसे अभी हमने डिस्कस किया, वी हैव थार डेजर्ट, ठीक है. अब और व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, ये भी आपको पता होगा. प्रेसिपिटेशन क्या होता है? व्हेन द वाटर इज फेलिंग फ्रॉम द स्काई, या व्हेन द वाटर इज फेलिंग फ्रॉम द स्काई इन द फॉर्म ऑफ स्नो और इन द फॉर्म ऑफ वाटर, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन. जब आसमान से पानी की वर्षा हो रही है ना, चाहे वो स्नोफॉल के रूप में हो रही है, पानी गिर रहा है, चाहे वो स्नोफॉल के रूप में गिर रहा है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में रेनफॉल के रूप में गिर रहा है, ऐसी स्थिति को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन. ठीक है. तो अब जब आप इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशंस देखते हैं, तो इसमें हमेशा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी. कैसे? पहले हम देखेंगे कैसे फॉर्म एंड टाइप्स में वेरिएशन कैसे है. हमारे पास फॉर्म में अगर हम देखें, तो हम लोग देखते हैं हमारे पास स्नोई माउंटेन्स है, वहाँ पर प्रेसिपिटेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल. वहाँ पर पूरा साल बर्फबारी होती है, ठीक है ना. तो वहाँ पर पानी जो आसमान से बरसता है, वो सॉलिड फॉर्म में बरसता है. मतलब कि जो प्रेसिपिटेशन होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है. लेकिन हमारे पास इसी तरह से हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन्स है, जहाँ पे हम पंजाब हरियाणा जैसे रीजन, यहाँ पर भी प्रेसिपिटेशन होती है, लेकिन यहाँ पर प्रेसिपिटेशन लिक्विड फॉर्म में होती है. यहाँ पर भी पानी बरसता है, असम में, मेघालय में भी पानी बरसता है, पर वो प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. तो वहाँ पर रेनफॉल होती है. तो इसीलिए वी कैन इजीली से दैट precipitation is there is a variation in the precipitation in the form.
Some parts of India receive precipitation in the form of snowfall, and some parts of India receive precipitation in the form of rainfall. So that is why we can easily say that there is a variation in the forms of precipitation. Now फॉर्म्स एंड टाइप्स, अब टाइप्स में भी सेम ये इकट्ठा ही बोल सकते हो, फॉर्म्स एंड टाइप्स, ठीक है ना। फॉर्म्स में और टाइप्स में वेरिएशन है, अभी कहीं पर सॉलिड फॉर्म में बारिश हो रही है, कहीं पर सॉलिड फॉर्म में पानी बरस रहा है, कहीं पर लिक्विड फॉर्म में पानी बरस रहा है। तो दैट मीन्स देयर इज अ वेरिएशन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स एंड टाइप्स। नाउ दूसरा है बच्चों अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, इसमें भी फर्क है। हम कहीं जैसे अभी हमने डिस्कस किया, हमारे पास मौसिनरम और चेरापूंजी जैसे एरियाज हैं जहाँ पर दैट आर रिसीविंग रेनफॉल हाईएस्ट रेनफॉल इन द होल वर्ल्ड, ठीक है। तो मतलब कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेसिपिटेशन हो रहा है, लेकिन साथ साथ हमारे पास थार डेजर्ट जैसे एरियाज भी हैं राजस्थान में। हमारे पास थार डेजर्ट जैसे राजस्थान के एरियाज भी हैं जहाँ पर पूरे साल में ना के बराबर बारिश होती है, या तो होती ही नहीं पूरा साल बारिश, अगर होती भी तो काफ़ी बहुत ही कम सेंटीमीटर में बारिश होती है। दैट मीन्स हमारे देश में अगर हम प्रॉपरली देखें तो अमाउंट में भी, प्रेसिपिटेशन के अमाउंट में भी वेरिएशन है, इसमें भी फॉर्म्स एंड टाइप्स में भी वेरिएशन है और साथ साथ अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन में भी वेरिएशन। तो दैट मीन्स ये कहना बिल्कुल सही है कि यस देयर इज एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न। ओवरऑल कहें तो हमारे देश में मानसून टाइप क्लाइमेट है ओवरऑल, लेकिन जब हम प्रॉपरली चेक करते हैं, डीपली चेक करते हैं, तो हमें आराम से वेरिएशन देखने को मिलती है इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस विद इन द कंट्री। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर वेरिएशन है फॉर्म्स एंड टाइप्स में भी, कहीं पर स्नोफॉल होती है, कहीं पर रेनफॉल होती है, और साथ साथ हमारे यहाँ पर वेरिएशन है अमाउंट में भी, क्योंकि अमाउंट कहीं पर चेरापूंजी और मौसिनरम जैसे एरियाज हैं जहाँ इतनी ज़्यादा रेनफॉल होती है कि फ्लड्स भी आ जाते हैं, और कहीं पर थार डेजर्ट जैसे एरियाज भी है जहाँ पर हर समय सूखा ही पड़ा रहता है। तो दैट मीन्स हमारे यहाँ पर इसकी फॉर्म्स एंड टाइप्स के बेसिस पर भी वेरिएशन है और अमाउंट के बेसिस पर भी वेरिएशन of precipitation. Is that clear? ये इसलिए these were the very important points you must understand about the climatic conditions of India. ठीक है बच्चों, क्लियर? चलो नेक्स्ट। Now I am rubbing it, ठीक है। I think you have already, I hope you have already underlined in your textbooks, ठीक है। I am rubbing it now. चलो नेक्स्ट। Okay, so now please underline the questions that are given in your textbooks. Beta, please underline the questions that are given in the blue box of find out. First question is why the houses in Rajasthan have thick walls and roofs. ठीक है, you have to write the answers of these questions. Next, why is it the houses in the Terai region and Goa and Mangalore have sloping roofs? And question number 3, why the houses in Assam are built on stilts? You have to write down the answer of all the 3 questions, ठीक है, for 3 marks each. Please underline these questions. Now, but our next topic is climatic controls. Our next topic is the climatic controls. Now, अब देखो इसके ना नाम से क्लियर हो रहा है इसमें क्या है। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स ऐसे क्लाइमेट के फैक्टर्स जो कि क्लाइमेट को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में हम कहें दीज आर द फैक्टर्स दैट यूज टू कंट्रोल द क्लाइमेट। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट दीज आर क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। इनकी वजह से किसी भी एरिया का, किसी भी कंट्री का, किसी भी जगह का क्लाइमेट जो है वो कंट्रोल होता है। अब वो कौन कौन से, अब अगर हम बात करें इंडिया की, इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो व्हाट आर द फैक्टर्स that affect the climate of India, या what are the climatic controls in India, ठीक है। हम ये सारा इसमें पढ़ेंगे प्रॉपर्ली। चलो प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन for 1 mark. Name the 6 important climatic controls of India. Name the 6 important climatic controls of India. चलो, now please underline in your textbooks also. But number 1, first point in climatic controls, number 1, that is latitudes. First one is latitudes. Secondly, number 2, altitudes. Number 3, first of all we will write the names and then we shall discuss all of these in detail. Number 3, pressure and wind systems.
and wind systems. Number 4, distance from the sea. Distance from the sea. Number 5, number 5, ocean currents. Ocean currents. And last one, number 6, that is relief features. Relief features. These are the 6 climatic controls. ठीक है ना. अब ये सारे क्या हैं, ये ऐसे फैक्टर्स हैं, ये ऐसे फैक्टर्स हैं, जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करने का काम करते हैं. दैट इज वाई दे आर नोन एज क्लाइमेटिक कंट्रोल्स. फर्स्ट वन इज लेटीट्यूड्स, सेकंड वन एल्टीट्यूड्स, नेक्स्ट प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स, रिलीफ फीचर्स. अब हम इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि हाउ ऑल ऑफ दीज क्लाइमेटिक कंट्रोल्स आर कंट्रोलिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. वाई दे आर कॉल्ड द क्लाइमेटिक कंट्रोल्स ऑफ इंडिया. ठीक है, तो वी शैल स्टडी ऑल ऑफ देम वन बाय वन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल स्टार्ट फ्रॉम लेटीट्यूड्स. ओके, नाउ first of all we shall start from latitudes. Now देखो बेटा, latitudes due to the curvature of earth ना, the amount of solar energy received according to the received gets less. Received becomes lesser as compared to the that is received from the lower parts. देखो मैं आपको शुरू से बताता हूँ. लेटीट्यूड्स में क्या होता है, दिस इज सपोज दिस इज अर्थ. ठीक है, सपोज दिस इज अर्थ एंड दिस इज द इक्वेटर. नाउ these all are latitudes. ठीक है, these all are latitudes. ठीक है, दिस इज ऑन 0 डिग्री इक्वेटर. ठीक है, नेक्स्ट 0, 1, 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे ऊपर तक जाएंगे 90 डिग्री तक. दीज आर नॉर्थ, दीज आर, ठीक है, साउथ. 10 डिग्री नॉर्थ, नेक्स्ट इधर 10 डिग्री साउथ, ऐसे करते करते नीचे 90 डिग्री तक यहाँ तक. ठीक है, चलो नाउ अब देखो, ये हम बात कर रहे हैं लेटीट्यूड्स के. हाउ द लेटीट्यूड्स आर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. आप सबको पता है इंडिया लाइज फ्रॉम द 8 डिग्री 4 नॉर्थ, 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ लेटीट्यूड्स. ठीक है, आप सबको इसके बारे में पता है कि इंडिया 8 डिग्री 4 पे स्टार्ट होता है. मतलब कि इंडिया जो है यहाँ से, दिस इज 10 डिग्री, यहाँ से नीचे 8 डिग्री, यहाँ से स्टार्ट होता है इस तरह से. तो मतलब द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज नियर टू द इक्वेटर. अब आप सबको पता है जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पर पूरा साल गर्मी रहती है. पूरा साल गर्मी क्यों रहती है? बिकॉज दिस पार्ट इज एट 8 डिग्री 4. 8 डिग्री 4 मतलब कि दिस इज नियर टू द इक्वेटर. और जैसे जैसे हम लेटीट्यूड्स में ऊपर जाते रहे ना, तो वैसे वैसे क्लाइमेट जो है वो चेंज होता रहता है. मतलब कि अगर हम 8 डिग्री 4 नॉर्थ में हम रहते हैं, सपोज हम साउथ इंडिया में रहते हैं, तो हमारा जो पूरे साल में टेम्परेचर है तो कुछ और रहेगा. अगर हम कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, 37 डिग्री 6 नॉर्थ. मतलब कि जैसे जैसे लेटीट्यूड से हम ऊपर जाते गए, हम इक्वेटर से दूर जाते गए और ऊपर 37 डिग्री, सपोज हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे कश्मीर है. ठीक है, अब यहाँ पे सपोज है 37 डिग्री 6 नॉर्थ. तो यहाँ का टेम्परेचर हमें अलग पूरे साल में कुछ और मिलेगा, यहाँ का टेम्परेचर पूरे साल में कुछ और मिलेगा. बिकॉज लेटीट्यूड्स के, बिकॉज यू कैन अंडरलाइन योर टेक्स्ट बुक्स, ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड gets changed due to the latitudes. ठीक है ना. एज ए रिजल्ट द एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस. ठीक है ना. तो अब यहाँ पर आपको टेम्परेचर कुछ और मिलेगा, यहाँ पर टेम्परेचर कुछ और मिलेगा. तो इसीलिए वी आर सेइंग दैट लेटीट्यूड्स यूज्ड टू चेंज, latitudes used to affect the climate of India, and that is why latitudes are also one of the important climatic controls of India. Is that clear, students? ठीक है, समझ लग रही है? जो चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी वो चीज़ यहाँ नहीं मिलेगी, जो यहाँ है वो वहाँ यहाँ नहीं. That is why these are the important latitudes are the important climatic controls of India. Okay, next number 2. Next बच्चों, number 2, that is the altitudes. अब एल्टीट्यूड्स का मतलब क्या होता है? हाइट.
एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट। अब हाइट में भी आप देख सकते हो, जैसे जैसे आप हाइट पर, ऊंचाई पर जाते जाओ ना, आपका जो क्लाइमेट है वो वहाँ पे चेंज होता रहता है। आप देख सकते हो, जैसे हम लोग प्लेन्स में रहते हैं, वी यूज टू लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में जो क्या है, ऑल्टीट्यूड इज लेस। नॉर्दर्न प्लेन्स में ऑल्टीट्यूड क्या है? ऑल्टीट्यूड इज लेसर एज कंपेयर टू माउंटेन्स। ठीक है ना। अब एक तरफ हम लोग रह रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, नॉर्दर्न प्लेन्स का एल्टीट्यूड क्या है? काफ़ी कम है एज कंपेयर टू द माउंटेन्स। तो दैट्स वाई नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको पूरे साल में टेम्परेचर कुछ और मिलेगा, माउंटेन्स में पूरे साल में आपको टेम्परेचर और क्लाइमेट कुछ और मिलेगा। यहाँ पर क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको सर्दी भी मिलेगी, गर्मी भी मिलेगी, ठीक है, हर तरह का क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन माउंटेन्स में नियर अबाउट ऑल ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज एल्टीट्यूड यानी कि हाइट जो है, दिस ऑल्सो अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया। तो दैट इज वाई एल्टीट्यूड इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक कंट्रोल। इज इट क्लियर बच्चों? जैसे जैसे आप ऊपर हाइट बढ़ती जाएगी, एज फार एज द हाइट इंक्रीजेस, द change will be there in the climate. The change will be there in the climate. So that means altitudes or height is the important climatic control. Okay, next, number 3. Number 3 में देखो बच्चों, pressure and wind systems. अब प्रेशर एंड विंड सिस्टम्स में आप देख सकते हो, हाँ, दिस बेटा देखो, प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड्स एंड एल्टीट्यूड्स ऑफ द प्लेस, दस इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल ऑफ एनी एरिया। इट इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। देखो प्रेशर क्या है? प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ठीक है ना। अब प्रेशर मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ये भी किसी एरिया का क्लाइमेटिक कंट्रोल। आपको याद होगा इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दीज मॉनसून विंड्स। मैंने आपको बताया था ये दीज यूज टू कम इन जून एंड जुलाई सीजन, एंड देन they bring rainfall in the whole of India, ठीक है। So that means the atmospheric pressure and also these wind systems affect the climate of India, because ये अपने साथ मानसून लेकर आते हैं। These are south west monsoon winds। अब ये जो मानसून विंड्स हैं, ये अपने साथ मानसून को लेकर आ रही हैं, बिकॉज इनके अंदर मॉइस्चर है, ये समंदर के ऊपर से आ रही हैं और ये अपने साथ मॉइस्चर लेकर आ रही हैं। दैट्स वाई ये पूरे इंडिया में रेनफॉल करती है। तो इसीलिए दिस इज एब्सोल्युटली राइट टू से दैट द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑल्सो अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। दैट इज वाई दिस प्रेशर एंड विंड सिस्टम इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक कंट्रोल ऑफ इंडिया, क्योंकि इनकी वजह से तो बारिश हो रही है पूरे देश में। अब आजकल मानसून का सीजन चल रहा है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ दीज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो हम लोग देख सकते हैं, इससे हमारे कंट्री के क्लाइमेट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसी की वजह से हमारे देश में मानसून आता है और फिर वापस जाता है। तो दैट्स वाई दीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स एंड विंड सिस्टम्स आर ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक कंट्रोल ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, नंबर 4, we are discussing these in brief. Okay, after the completion of these topics we shall discuss these in detail one by one. ठीक है, अभी हम लोग इनकी brief study कर रहे हैं स्टार्टिंग में। नेक्स्ट, distance from the sea, number 4। अब देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। कैसे? देखो, जितना कोई भी एरिया जो सी के नज़दीक होगा ना, वहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट होगा, लेकिन जैसे जैसे अब डिस्टेंस दूर होता जाए सी से, टेम्परेचर जो वहाँ का टेम्परेचर होगा ना, उसमें चेंज आता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं यहीं भी बताता हूँ, रुको। ठीक है, दिस एरिया इज नियर टू द सी। ठीक है, सपोज करो आपके ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक है, ये आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं एंड ये आपके
ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये पूरा का पूरा एरिया इज वेरी मच नियर टू द सी, ठीक है, ये सारा एरिया। अब यहाँ पर क्या है, या इन जो एरिया समुंदर के नज़दीक है ना, इनमें आपको पूरा साल मॉडरेट टेम्परेचर, पूरा साल मॉडरेट टेम्परेचर मिलेगा। पूरा साल मॉडरेट टेम्परेचर क्यों मिलेगा? बिकॉज जो ये नियरनेस टू द सी है ना, नियरनेस टू द सी है, ये अपने साथ टेम्परेचर को मॉडरेट बनाए रखने का काम करती है। कैसे बनाए रखती है? बिकॉज कभी वार्म ओशन करंट्स आ जाते हैं तो और कभी कोल्ड ओशन करंट्स आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, वार्म एंड कोल्ड का मिक्सचर सा बना रहता है और टेम्परेचर पूरा साल मॉडरेट बना रहता है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी ना बहुत ज़्यादा गर्मी। लेकिन जैसे जैसे आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी बढ़ता जाए, आप ऊपर की तरफ जाते जा रहे हो, इंडिया के ऊपर टॉप लेवल पर जाते जा रहे हो, आपका डिस्टेंस ऑफ द सी इंक्रीज होता जाए, उससे क्या होता जाएगा, कॉन्टिनेंटैलिटी इंक्रीजेस, ये चीज बढ़ती है, कॉन्टिनेंटैलिटी इंक्रीज। राइट द क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कॉन्टिनेंटैलिटी? प्लीज अंडरलाइन एंड व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कॉन्टिनेंटैलिटी? देखो बेटा, व्हाट इज कॉन्टिनेंटैलिटी? दैट मीन्स वेरी हॉट इन समर्स एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स। मतलब कि जैसे कॉन्टिनेंटैलिटी मीन्स द टेम्परेचर इज वेरी हॉट इन समर्स एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स। जैसे कि हम लोग रहते हैं पंजाब रीजन में, देखो 1 मिनट, हम लोग रहते हैं पंजाब में। नाउ पंजाब का क्या है, पंजाब इज फार अवे फ्रॉम सीज। और अब पंजाब में आप देख सकते हो, पंजाब या नॉर्दर्न प्लेन्स में आप देख सकते हो, इट इज़ फार अवे फ्रॉम द सी। तो दैट्स वाई सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी। तो दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस, कॉन्टिनेंटैलिटी इंक्रीज। मतलब कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाए, सर्दियों में ठंड ज़्यादा और गर्मियों में गर्मी ज़्यादा, ये होनी शुरू होती है। लेकिन अगर आप समुद्र के नज़दीक रहते हो तो फिर क्या होगा, ठीक है, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, रफ मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, पूरा नीचे तक नहीं बना, यहाँ तक बना, ठीक है। देखो अब ये क्या है, दिस एरिया इज नियर टू द सी, ठीक है, ये एरिया जो है समुद्र के नज़दीक है, ठीक है, ये पूरा एरिया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉन्टिनेंटैलिटी ज़्यादा नहीं होगी, मतलब कि वेरी लेस कॉन्टिनेंटैलिटी जो है काफ़ी कम होगी, बिकॉज नियरनेस टू द सी, समुंदर के जितना नज़दीक हो गए उतनी ही कॉन्टिनेंटैलिटी कम होगी। मतलब कि पूरा साल मॉडरेट टेम्परेचर पूरा साल, बिकॉज समटाइम्स देर यूज टू कम वार्म ओशन करंट्स, समटाइम्स देर यूज टू कम कोल्ड ओशन करंट्स। तो ड्यू टू दिस मिक्सचर ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स, तो जो आसपास की हवा है ना, वो मॉडरेट सी बनी रहती है। आसपास को टेम्परेचर है, ये मॉडरेट सा बना रहता है, ना पूरा साल ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। लेकिन आप सपोज यहाँ रहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, यहाँ, ठीक है, अब देखो यहाँ रहते हो, ये आपके हो गए ऊपर हिमालयस, ये नीचे आपके हो गए ये नॉर्दर्न प्लेन्स, ये सारे के सारे दिस वन, ठीक है। अब ये समुंदर से काफ़ी दूर है, देखो ये समुंदर से काफ़ी दूर है, यहाँ पर जाओ। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द सी बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कॉन्टिनेंटैलिटी इंक्रीजेस। समझ लगी ना? क्यों? क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द सी इज एन इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक कंट्रोल। तो जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस, कॉन्टिनेंटैलिटी इंक्रीजेस, डिस्टेंस फ्रॉम द सी डिक्रीजेस, कॉन्टिनेंटैलिटी डिक्रीजेस। तो दैट इज वाई इट इज एब्सोल्युटली राइट टू से दैट डिस्टेंस फ्रॉम द सी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक कंट्रोल दैट अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। आप समुद्र से दूर जाते जाओगे, आपके सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। लेकिन आप समुद्र के पास रहते हो तो पूरा साल मॉडरेट टेम्परेचर, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी। तो दैट इज वेयर डिस्टेंस फ्रॉम द सी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक कंट्रोल। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो नेक्स्ट, आई एम रबिंग दिस नाउ, ठीक है।
नंबर 5, ओशन करंट्स। ओशन करंट्स, अब ये भी वही उसके साथ जुड़ा हुआ जो भी आपने पढ़ा ना, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, उसके साथ ही जुड़ा हुआ एक तरह पॉइंट, ओशन करंट्स। ओशन करंट सेम वही कि समटाइम्स देर यूज टू कम वार्म ओशन करंट्स, समटाइम्स देर यूज टू कम कोल्ड ओशन करंट्स। तो कभी वार्म ओशन करंट्स आ जाते हैं, कभी कोल्ड ओशन करंट्स आ जाते हैं, जिससे क्या होता है टेम्परेचर जो कोस्टल एरियाज में है उसके नियर टू द सी एरियाज हैं वहाँ पे पूरा साल मॉडरेट टेम्परेचर बना रहता है, जबकि बाकी सारे कंट्री में, बाकी सारे एरियाज जो समुद्र से दूर है वहाँ टेम्परेचर चेंज होता रहता है। वहाँ पे कभी सर्दी आ गई, कभी गर्मी आ गई, ठीक है। जैसे अब पंजाब रीजन में कभी गर्मी का मौसम, कभी सर्दी का मौसम, कभी बारिश का मौसम, ठीक है। मतलब बारिश तो चलो पूरे इंडिया में होती है। तो मतलब कि ओशन करंट्स की वजह से क्या होता है कि जो आपके नियर टू द सी एरियाज हैं वहाँ पर पूरा साल मॉडरेट टेम्परेचर। तो दैट्स वाई ओशन करंट्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक कंट्रोल ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, मैंने ये समझा दिया वो आपको पहले से, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ठीक है जी। ये आपकी इधर भी आपका इधर है अरेबियन सी, नीचे इंडियन ओशन, इधर आपका बे ऑफ बंगाल। अब ये 3 तरफ समुंदर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कभी आपके आगे वार्म ओशन करंट्स, ठीक है, कभी आपके आगे कोल्ड ओशन करंट्स। अब क्या होगा, इनके साथ जो अगर वार्म ओशन करंट्स आ रहे हैं तो गर्म हवाएं आ जाएंगी, अगर कोल्ड ओशन करंट्स आ रहे हैं तो ठंडी हवाएं आ रही हैं। उससे क्या हो रहा है यहाँ पर वही जो अभी बताया, इन एरियाज में पूरा साल मॉडरेट टेम्परेचर, पूरा साल यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर बना रहता है। यहाँ ऊपर दूर की तरफ जहाँ पूरे साल टेम्परेचर चेंज होगा, यहाँ भी टेम्परेचर कुछ और होगा, वहाँ कुछ और होगा, लेकिन यहाँ पे पूरा साल एक ही टेम्परेचर आ रहा है इधर। क्यों? क्योंकि ओशन करंट्स जो है, समटाइम्स देर आर कोल्ड ओशन करंट्स, समटाइम्स देर आर हॉट ओशन करंट्स, एंड ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ दिस हॉट एंड कोल्ड, मॉडरेट टेम्परेचर ऑलवेज एग्जिस्ट in the coastal areas. That is why we can say that these ocean currents are also an important factor that can be called as an important climatic control of India, that controls the climate of India. So that's why we are including ocean currents in this category also. Clear, students? ठीक है, चलो next, number 6. Okay, next student is बच्चों, next is point number 6, that is relief features. Now रिलीफ फीचर्स मतलब इंडिया के जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है ना। अब ये रिलीफ फीचर्स हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। आपको सबको पता है, आपने सभी ने अभी जैसे 9th क्लास में जब ये चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, यू हैव रेड चैप्टर नंबर 2, उसमें यू हैव रेड अबाउट द रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडिया, अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और आप सभी ने देखा था इंडिया हैज 6 इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स, 6 इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स, ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स में कौन कौन से आते हैं, आपने सबने पढ़े थे। पहले में माउंटेन्स, ठीक है। अब अगर नॉर्थ इंडिया से चलना शुरू करें, पहले माउंटेन्स, नेक्स्ट नंबर 2 नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके प्लेट्यूज, ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर डी ऑप्शन कोस्टल प्लेन्स, नेक्स्ट थे आपके ये, नेक्स्ट कौन से आते हैं, हाँ आपके आइलैंड्स, ठीक है। और एक और आपका डेजर्ट। तो दीज आर द 6 important physical features of India, important relief features of India, and due to all these features इंडिया का क्लाइमेट जो है अफेक्ट होता है, ठीक है ना। माउंटेन्स में आपको पूरे साल कुछ और मिलता है, और माउंटेन्स ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, बिकॉज ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं इनको आगे की तरफ जाने से रोकते हैं। जितने भी माउंटेन्स हैं हमारे हिमालय माउंटेन्स, ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती हैं जो इंडिया में बारिश करती हैं, वो इन माउंटेन्स का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये अपने साथ मॉइस्चर भरकर लेके आती हैं। आगे माउंटेन्स की इतनी बड़ी दीवार आ जाती है, तो ये अपने साथ ये जो माउंटेन्स है ना, ये इन हवाओं को तिब्बत की तरफ नहीं जाने देते, बल्कि इंडिया में रोक लेते हैं। इनसे टकरा के हवाएं यहीं पर रुक जाती हैं और पूरे इंडिया में बारिश करती हैं। अगर ये माउंटेन्स ना होते, सपोज ये हिमालय पर्वत ना होते, तो ये जितनी भी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आ रही हैं ना, ये सारी की सारी इंडिया में बारिश किए बिना ही आगे निकल जाती तिब्बत की तरफ, चाइना की तरफ। लेकिन क्योंकि रास्ते में इतने बड़ी माउंटेन्स की दीवार खड़ी है, तो ये आगे नहीं जा पाती, ये इंडिया इनके साथ टकरा के यहीं इंडिया में बारिश करती। तो दैट्स वाई माउंटेन्स आर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया।
इसके अलावा नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये भी हमारे, आपको पता है यहाँ पे काफ़ी अच्छी सॉइल है, ठीक है, ये भी हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, कोल्डर कोस्टल प्लेन्स, दीज ऑल इंपॉर्टेंट फीचर्स आर ऑल इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स या रिलीफ फीचर्स आर इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक कंट्रोल्स ऑफ इंडिया। सभी की अपनी अपनी वैल्यू, तो दैट्स वाई हम इन सब रिलीफ फीचर्स को, इन सब फिजिकल फीचर्स को भी क्लाइमेटिक कंट्रोल्स में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज अवर टुडेज टॉपिक ऑफ क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे हम लोग इन्हीं सब 6 फीचर्स को प्रॉपर डिटेल स्टडी करेंगे। दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। इन द नेक्स्ट वीडियोस वी शैल डिस्कस all of these 6 features that is we have already discussed, that is latitudes, altitudes, pressure and wind system। ठीक है, नेक्स्ट आवर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स, इन सबको हम लोग प्रॉपर डिटेल में स्टडी करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियोस। सो अगर इस वीडियो के मुताबिक आपको स्टिल यू हैव एनी डाउट्स इन दिस वीडियो, यू कैन सेंड मी योर डाउट्स। ठीक है जी, एंड वी शैल डिस्कस दीज डाउट्स ऑल्सो इन अवर नेक्स्ट वीडियोस। तो यू कैन एंड प्लीज राइट डाउन दीज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन योर टेक्स्ट बुक। जो मैंने आपको क्वेश्चंस लिखवाए हैं, उन सभी क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर्स को यू हैव टू राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक्स। Is that clear, students? So still you have any doubts, you can send me your doubts. So this was of today's video. Thank you so much, students. Thank you.